बदलते भारत की शान। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। नमस्कार सर। So with your permission, I'll start the session. Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Food Processing Industries, Rural Development and Panchayati Raj, Government of India. Mr. Uday Kotak, President CII. Mr. Ashwini Ram, past President CII and the Chairman of CII Agro Food Tech 2020. Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CII. Mr. Ankur Chauhan, ladies and gentlemen, friends and media. A very good morning to everyone and welcome to CII Agro and Food Tech 2020. सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात और CII Agro और Food Tech India 2020 में आपका स्वागत है. Agriculture is the foundation of the Indian economy and provides livelihood to more than half of our population. Since the inception of CII Agrotech in 1994, it is India's flagship agri exhibition to promote technology for farmers. We are very proud to have you here today. This year, on account of the pandemic, we are organizing this mega event over a virtual platform, CII High. The CII Agro and Food Tech India is aligned with the government's of India's vision to doubling farmers' income, and it aims to ensure that innovation and technology drive the agri and food processing sector towards even higher productivity and efficiency. We are honored by the participation of Shri Narendra Singh Tomar ji, the Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Food Processing Industries, Rural Development and Panchayati Raj, Government of India, as a chief guest of CII Agro and Food Tech 2020. बहुत-बहुत धन्यवाद, sir, for gracing us on this occasion. With these words, I invite Mr. Chandrajit Banerjee, the Director General of CII, to deliver his welcome remarks. Thank you, Nikhil. Shri Narendra Singh Tomar ji, the Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Food Processing Industries, Rural Development and Panchayati Raj, the Government of India, Shri Uday Kotak, Shri Ajay Shriram, Shri Nikhil Soni, Shri Ankur Chauhan. Sir, माननीय मंत्री महोदय, श्री नरेंद्र कुमार जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ CII के फ्लैगशिप एग्रीकल्चर इवेंट में उपस्थित है. हम बहुत ही आभारी है कि आप समय निकल के आज हमारे बीच में उपस्थित है. चीफ गेस्ट के नाते आपको स्वागत करना चाहता हूँ सर. इस बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप इवेंट CII के है. आज हम ये फ्लैगशिप इवेंट का 14वें एडिशन पे हम शामिल हैं सर. एग्रीकल्चर इज वन सेक्टर सर जिसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ आए हैं और रेजिलियंस था ड्यूरिंग द पैंडेमिक सर. एंड इट्स द ओनली सेक्टर जिसने की ग्रोथ रजिस्टर किया बोथ डोमेस्टिकली और इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट and have risen by 43.4% in the first half of the year and supported by increasing rural consumption and uptake of technology sir. सर हम CII की तरफ से सर आपको बधाई देना चाहता हूं सर आपके लीडरशिप के लिए ऑन प्रोग्रेसिव रिफॉर्म जो आप आगे लेके गए हैं सर. इतने जोर कदम से आपने जो फोकस किया है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर और आपने एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो आपने अनाउंस किए हैं टुवर्ड्स मूविंग टू वन नेशन वन मार्केट. सर हम बिलीव करते हैं CII से कि दैट ये रिफॉर्म्स विल बेनिफिट द सेक्टर. More importantly, sir, it will increase farmers' income. और in partnership with your ministry, sir, हम काम करना चाहेंगे कि कैसे और आपका guidance आज हम looking forward to your guidance, sir. ठीक है ताकि हम कैसे ये jointly CII आपका मिनिस्ट्री का साथ आपका साथ काम कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव को हम आगे लेके जा सकते हैं.
तो सीआईआई के आश्वासन है कि ये मार्केट रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया दौर लेके आएंगे और इससे हमारे किसान भाइयों और बहनों की आय में बढ़ोतरी तो होगा ही होगा सर। इस प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के लिए आपको और आपका मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई सर। 14th एडिशन ऑफ एग्रोटेक जो आज हो रहा है, हम इनका नामकरण कुछ चेंज किए हैं सर। हम इसको कहते हैं कि एग्रो एंड फूड टेक, ताकि ये इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक के तरह मनाया जा सकता है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है सर, आज वर्ल्ड फूड डे भी है। तो इसी दरमियान सर हम बहुत ही खुश है कि मेंशन करते हुए कि CII is completely aligned in its agenda with the government's target of doubling farmers' income by 2024, and accordingly we have adopted आज का जो थीम जो हमने अडॉप्ट किया है, टेक्नोलॉजी फूड एंड एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। सर हमारे जो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्लीटली समर्पित किए गए हैं, उसका साथ आपका इंटरेक्शन पहले भी हुआ है और हम ये सेंटर को फुल्ली आगे लेके आएंगे। हमारे दूसरे सेंटर्स के जो है वाटर सेंटर और एक हमारे सस्टेनेबिलिटी सेंटर का साथ, ये हम आगे लेके आके तीनों सेंटर का साथ हम आपका मंत्रालय और आपका अंडर हम काम करना चाहेंगे। तो सीआईआई ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ काम करने के लिए एक बिजनेस सर्विस यूनिट बनाए हैं जिसका फोकस मार्केट लिंकिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर होगा। और इसके माध्यम से 2021 तक हम 50,000 किसान परिवारों का साथ जुड़ के काम करेंगे। इसमें राइस, मेज, सोयाबीन, पल्सेस, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली वैल्यू चेन्स में हम काम किए जाएंगे। लेकिन सर आपका डायरेक्शन और आपका गाइडेंस हमको बहुत ही जरूरत है, ताकि हम कैसे हम आपका ये जो प्रोग्राम्स है, आपका जो रिफॉर्म्स एजेंडा है, इसको हम कैसे सपोर्ट करें। सर माननीय मंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि इस सेक्टर के बढ़ोतरी के लिए सीआईआई आपका पूरा सहयोग करेंगे। और बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सीबी। अब मैं मिस्टर अजय श्रीराम, चेयरमैन सीआईआई एग्रो फूड टेक इंडिया 2020 को सर आप प्लीज कॉन्टेक्स्ट धन्यवाद दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद निखिल। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर उदय कोटक, मिस्टर चंद्रजीत बैनर्जी, मिस्टर निखिल सानी, एग्जिबिटर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है आज सुबह। तोमर जी, सीआईआई की ओर से और मैं अपनी ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आप ये इनॉग्रल फंक्शन में आए। आपके आने से ये हमारे सारे प्रोग्राम की बढ़ावट बहुत होगी और आपके आने से हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सबको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। जैसे पहले भी कहा है, ये 14वां एडिशन है सीआईआई एग्रोटेक का। हम लोग हर 2 साल ये फिजिकली चंडीगढ़ में करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम लोग फिजिकली नहीं कर सके और हमने 1 हफ्ते का प्रोग्राम करा है यहाँ पे एग्रो और फूड टेक को मिलाकर, ताकि हम ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकें, ज्यादा चीजों के बारे में बातचीत कर सकें और हम और भारत को बढ़ावा दे सकें कि हमारी ओर से यहाँ पे फार्मर्स की इनकम, फार्मर्स की वेलफेयर और ज्यादा बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों से, उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, एग्री ट्रेड रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे और नए एंगेजमेंट होंगे लोगों के साथ कि एग्रीकल्चर और ज्यादा बढ़ावत होगा और सारे लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो सब एक दूसरे से मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। इस साल का थीम है टेक्नोलॉजी इन फूड एंड एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। ये जो आपका और आपकी गवर्नमेंट का थीम और फार्मर्स इनकम बढ़ाने की बात है, हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये बहुत सही है, बहुत जरूरी है और हम लोग इसको पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे इस प्रोग्राम में
हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लीवरेज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें और फार्मर्स इनकम डबल करने की तरफ ज्यादा बढ़ें. It is well recognized, sir, that technology is the backbone for pushing forward agriculture potential. I am happy to mention that the Ministry of Agriculture is already working with the Information and Technology Ministry to develop a digital data bank of farmers in the country. ये बहुत जरूरी हो जाता है जब हम काश्तकारों के साथ डिजिटल सॉल्यूशंस ढूंढने जाएंगे. CII एग्रो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इस बार फोकस कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि सारे कम्युनिटी के मेंबर्स भारत में भी नहीं बल्कि दुनिया भर में एक दूसरे से सीख सकें और बातचीत कर सकें. इस बार हम डिजिटल एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हम सब डायरेक्शंस में बातचीत करेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि ये एडिशन CII एग्रो एंड फूड टेक में इंडियन एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर को बहुत फायदा होगा और हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अगले लेवल पे पहुंचेंगे. ये इवेंट बहुत अपॉर्चुन टाइम पे हो रहा है, क्योंकि भारत में पिछले 6 महीने में हमने देखा किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा है और भारत को सपोर्ट दे रहा है. चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जरूरी हैं और वही हम भी इस सेमिनार में आगे बढ़ाएंगे. भाइयों और बहनों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे रिफॉर्म्स, बड़े अच्छे रिफॉर्म इनिशिएट करे हैं एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में, और CII की ओर से मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूं मिनिस्टर को कि हम भी उनके साथ, जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है मूविंग टू वन नेशन वन मार्केट, हम उसको पूरा सहयोग देते हैं और उस पर हम भी काम करेंगे आपके साथ. आपने जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 जो आप लाए हैं, उससे फार्मर्स को बहुत फायदा होगा. हमारे समझ में ये है. ये रिफॉर्म्स एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे फार्मर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी. वो कहाँ बेचना चाहते हैं, किससे खरीदना चाहते हैं और उनको सबसे बढ़िया दाम कहाँ मिलता है. ये सबसे अच्छी चीज ये है कि फार्मर को अब चॉइस मिलेगी कि वो कहाँ पे बेचें. पहले सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते थे, अब तो हमको चॉइस मिल जाएगी कहाँ पे कर सकते हैं. This will give a tremendous impetus to bulk buyers to invest in extension activities to the farmers, और उससे प्रोडक्टिविटी और उसके consequently farmers की profitability भी ज्यादा बढ़ेगी. To facilitate timely payment, the ordinance specifies that payment to farmers should be made on the same day or within maximum 3 days due to procedural requirements. ये provision जो है, इससे फार्मर का प्रोटेक्शन और भी बढ़ जाएगा. सर, आजकल ये जो बातचीत हो रही कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरीके से सपोर्ट करें, किस तरीके से इसको हम फार्मर्स को दें, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ये जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, इससे फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती रहेगी मंडीज में, लेकिन उनको एक और जगह बेचने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे उनकी चॉइस से वो बेच सकते हैं. मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं जहां पे प्राइवेट सेक्टर और काश्तकार साथ मिलकर काम करने से कैसे काश्तकारों का फायदा हुआ है. अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो मिर्ची, चिली के फार्मर्स, उनकी प्रोडक्टिविटी लगभग 13% बढ़ी है, क्योंकि इंडस्ट्री इन्वॉल्व की वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है. इसकी वजह से काश्तकार का प्रोड्यूस चिलीज उनके खेतों से ली जाती है और उनको इसमें फायदा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी. सिमिलरली अगर बंगाल में देखें, वहाँ बनानास, केले वाले जो काश्तकार हैं, उनको पिछले 8 साल में 6 टाइम्स उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और 100% बायबैक का एश्योरेंस मिलता है उनको एट मार्केट प्राइस along with a guaranteed minimum price. तो farmer is a beneficiary of this relationship. अगर राइस वैल्यू चेन पे देखें तो हरियाणा के फार्मर्स को फायदा बहुत हुआ है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इससे अगेन ये कंपनी जो ये कर रही है, वो प्लान ये कर रही है कि 2024 तक 5,000 फार्मर्स इस सिस्टम में आ जाएंगे, जिससे उनको ये चावल बेचने में फायदा होगा। सर, प्राइवेट सेक्टर बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, कलेक्शन सिस्टम्स में, स्टोरेज सिस्टम्स में, और किस तरीके से वैल्यू एडिशन काश्तकार को होगा। Sir, coming back to today's event, CII Agrotech extends a special focus on the agri-input sector, agri-finance, horticulture and floriculture, farm machinery and implements, food processing and sugar sector, dairy, fisheries and poultry, irrigation and water management, innovations and new technologies through its focused online exhibitions, as well as a series of seminars and conferences. So ये online events 120 exhibitors इस conference में भाग ले रहे हैं, और UK से, कनाडा से, इंडोनेशिया से और UAE से exhibitors इस conference में भाग ले रहे हैं। कुछ की फीचर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें वर्चुअल सेक्टर एग्जिबिटर्स को मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उनको ये टाइम मिलेगा कि B2B मीटिंग्स भी कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। इसमें 11 थीम्स हैं जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में होंगी, 9 स्टेट स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस हैं, 2 कंट्री सेशंस हैं, 13 किसान गोष्ठीज हैं। ये पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के साथ है, स्टेट और सेंटर के साथ और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ, और ट्रेनिंग सेशंस और फार्मर इंटरैक्शन भी बहुत होंगे। सर, CII में पार्टनरशिप हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ द वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। CII Agro and Food Tech 2020 also has many partnerships with government and private organizations that have made this event possible on such a mega scale. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Ministry of Food Processing Industries and Ministry of Jal Shakti, Government of India, ये सब हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस पे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हमारे साथ पार्टनर स्टेट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस पे, और ग्रेट ब्रिटेन हमारे साथ पार्टनर कंट्री है बाहर से। सर, हमें तो ये विश्वास है कि फार्मर्स रिमेन द कोर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। CII एग्रोटेक और फूड टेक में ये जो हमारा सेमिनार हो रहा है, इसमें बहुत सारे एक्सचेंज के मौके मिलेंगे, फार्मर्स को बात करने का, इंडस्ट्री को बात करने का, गवर्नमेंट को बात करने का, प्रोसेसर्स को बात करने का, टेक्नोलॉजीज को वालों को बात करने का, और एक दूसरे से सीखने का मौका बड़ा जबरदस्त होगा। सर, मैं सारे स्टेक होल्डर्स को, मुझे पूरा विश्वास है सबको फायदा होगा ये एक हफ्ते के हमारे कॉन्फ्रेंस के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर श्रीराम। अब मैं CII के प्रेसिडेंट श्री उदय कोटक को बुलाना चाहता हूं कि वो हमें एड्रेस कर पाए। श्री कोटक। माननीय मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी, मेरे CII के कॉलीग्स अजय श्रीराम, निखिल सोनी, चंद्रजीत बैनर्जी, और all the guests and attendees of the conference. सबसे पहले तोमर जी, on behalf of CII, आप ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्यूरेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। वहां हमारी फोकस होगी एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्टर in the years to come ahead. इसीलिए doing an inauguration of this conference today and continuing the good work of what this CII has been doing in this area, उसके लिए आपकी आज presence बहुत ही महत्वपूर्ण है। I will first want to share with you
a little bit about my family. हमारी फैमिली की बहुत ही क्लोज कनेक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर से। मेरे पिताजी तो कॉटन मैन हैं, अभी 87 साल के उम्र के हैं और उसको पूरा कॉटन ग्रोअर्स और ट्रेडर्स कहते हैं फादर ऑफ कॉटन। इसलिए हमें फार्मर्स के साथ बहुत ही क्लोज संगत है सालों से। और जो भी रेवोल्यूशंस हुआ है, जैसे गुजरात में रेवोल्यूशन हुआ ऑन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन द एरिया ऑफ कॉटन, मेरे पिताजी कड़ी, हिम्मतनगर, बहुत से जगह में खुद बहुत काम किया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उनकी बिलीफ है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, और मैं और सीआईआई उससे सहमत है। जब 2/3 ऑफ इंडियंस are dependent on agriculture and rural India for their future, it is crucial for all Indians to focus on the agriculture sector as the backbone and the fundamental for India's future. तो इन कनेक्शन में मैं 4 और 5 महत्वपूर्ण मुद्दे आपसे शेयर करना चाहूंगा और ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले is productivity. India has made significant improvement in productivity in agriculture, और ये जो continuous improvement हुआ है उसके लिए focus on agriculture, focus on land use, focus on water is crucial to improve productivity not only of agriculture but each inputs into agriculture, because resources like water are also scarce. So सबसे पहले focus on productivity. Second is fair realization to the farmer. जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, वो ज्यादा उत्पादन का फायदा फार्मर का होना जरूरी है। इसलिए हमें mechanisms to ensure fair realization for the farmer continue to be very important, and यहाँ balance between consumer inflation और fair realization to the farmer are crucial. और in that connection, मंत्री जी, हमें to ensure fair realization of the farmer, export push in areas where we have surplus is also extremely important. How do we ensure that the farmers' realization improves through a significant export push in areas where we have ability to have surplus over and above our national requirements? Third is the area of storage. Improvement of warehousing facilities, it is already happening, लेकिन warehousing, cold storage for fruits and vegetables is again a very big area for us to focus, जिससे जो भी crop बने वो हम store कर सके और we ensure that the crop goes to the consumer and the consumer price gets under control as well. आज कभी-कभी because of lack of storage facilities, farmer sells in distress, लेकिन consumer pays a high price. Therefore, an important area is storage and supply chain for ensuring fair value and realization for the farmers. Next is technology and the change you have made, the path-breaking changes which have been made in agriculture policy. इससे farmer to user direct through technology with minimal unnecessary intermediaries is the backbone to improve realization to farmer, reduce the interim spread of the middleman, and fair price to the actual consumer. So this farm and technology and direct use by the customer is going to be the backbone of our future policy. Or finally, in order to ensure all this is achieved, Mantri ji, the importance of finance. Or in that context, the support by the government and through RBI for additional refinance support given recently through NABARD, the current support to small and marginal farmers by the priority sets, sector norms of the Reserve Bank help the banks to finance the small and marginal farmer directly, and a transformation of rural India. In the pandemic world, Mantri ji, another major change has happened.
till now, bulk of India's economic growth was coming from urban India. For the first time, thanks to technology and digital and movement of people back to their hometowns and villages has led to a migration which at some level has been reverse migration into rural India. With the help of technology and digital, Mantriji, it's a very big opportunity for transforming India broader and for a very significant opportunity to make rural India buzz again, certainly in agriculture, but all surrounding services around agriculture as also technology and digital. I am confident that India will get to a great position in the future as we build our agriculture base. One of the reasons why Prime Minister's Atmanirbhar Bharat rings a bell for every one of us is India is Atmanirbhar in food and agriculture. It is the basic requirement of every Indian citizen to be able to get in appropriate levels of food, and agriculture there is a very strong backbone to build a Atmanirbhar Bharat. Once again, मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेजेंस से, और हम सब उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर कोटक. पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि हमारी कृषि सेक्टर कैटलाइज हो पाए और मार्केट्स और भी डायनामिक तरह से चल पाए, और ये सब हो पाया है थ्रू द डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी. अब मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं आपको बुलाना चाहता हूँ. श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर, ओवर टू यू. सभी को नमस्कार. इंडियन इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 के अवसर पर मैं आप सभी प्रतिभागियों को हृदय से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं. आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित आदरणीय श्रीमान उदय कोटक जी, आदरणीय अजय श्रीराम जी, आदरणीय चंद्रजीत बैनर्जी साहब, आदरणीय निखिल स्वानी जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम सारे महानुभाव जो इस क्षेत्र में काम करते हैं. आज विश्व खाद्य दिवस है. मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. हम सब जानते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को की थी, और इसी उपलक्ष्य में इस दिन निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम की आयोजना होती है, और उसका लाभ सारी कंट्री को और दुनिया को मिलता है. CII का जो कृषि विजन है और आपके द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से CII की हृदय से पूरी प्रशंसा करना चाहता हूं और सराहना आपके प्रयत्नों की करना चाहता हूं. आज CII ने एग्रो एंड फूड टेक का आयोजन किया है, जिसकी विषय वस्तु खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर किसानों की आय बढ़ाना है, जो निस्संदेह रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अनुरूप है. वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य के साथ कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध उत्पादन, सेवा तथा तकनीकी उपायों को प्रदर्शित करने हेतु CII एग्रो एंड फूड टेक एक उपयुक्त मंच है. मुझे आशा है कि इस समारोह में उपस्थित सभी हितधारक कृषि क्षेत्र
तथा उससे संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक समाधान, उभरते अवसर तथा व्यापारिक संभावनाओं का लाभ उठाने में सफल होंगे। इस विश्व खाद्य दिवस के मौके पर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने अन्न देवो भव के नाम से जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। अन्न देवो भव प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। हम भोजन करने से पहले उसकी पूजा करते हैं, अन्न को ईश्वर मानकर पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम अन्न के साथ साथ उसे उगाने वाले अन्नदाताओं को भी सम्मान देते हैं। देश में जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी आज इस बात की जरूरत है कि हम सब अन्न की बर्बादी को रोकें। कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश की बड़ी आबादी की जीविका का भी यह साधन है, जिस पर भारत सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। सुचारू विपणन व्यवस्था व उन्नत तकनीक की सहायता से कृषि क्षेत्र ज्यादा विकसित हो सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। कोरोना संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी, किंतु कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि भविष्य में होने वाले विकास की नींव भी रखी। कृषि क्षेत्र ने 3.4% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। कृषि क्षेत्र में ये वृद्धि नहीं होती तो भारतीय जीडीपी में और अधिक गिरावट होती। जाहिर है हमारी कृषि एवं संबद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। देश में इससे पहले भी ऐसी संकट की स्थिति जब आई है तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ने अपनी ताकत दिखाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी इनके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को और ताकत मिलेगी। कोरोना महामारी के बावजूद रबी की फसलें समयबद्ध तरीके से कटाई हुई। खरीफ की फसलों का कवरेज एरिया रिकॉर्ड बढ़ा। ग्रीष्मकालीन बुवाई में 35% से ज्यादा की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 4.51% की वृद्धि दर्ज करते हुए खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1121.75 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया, जो अब तक का सर्वाधिक क्षेत्र है। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन की अधिक उम्मीद है। वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुमान के अनुसार खरीफ उत्पादन 144.52 मिलियन टन होने की संभावना है। कैश क्रॉप, गन्ना, कॉटन, मसाले, कॉफी आदि की भी अच्छे उत्पादन की आशा है। भारत विश्व के 15 बड़े निर्यातकों में से है। देश का कृषि निर्यात वर्ष 19 में 38.54 बिलियन US$ तक पहुंच गया। वह जनवरी 20 में 28.93 बिलियन डॉलर हुआ। वहीं कोरोना संकट के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में पहले 6 माह में कृषि निर्यात में 43.4% की वृद्धि हुई। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत 10.2 बिलियन US$ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। साथ ही चीनी उद्योग के लिए $200 मिलियन, कृषि सेवाओं के लिए $2.2 बिलियन व खाद्य तेल एवं वनस्पति के लिए $9.7 बिलियन का FDI अप्रैल से जून 20 के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज घोषित किए और उस पर अमल भी
प्रारंभ कर दिया गया है। इन्हीं में से एक प्रमुख 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसके माध्यम से गांव-गांव में निजी निवेश आने वाले कल में दस्तक देने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से देश न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन भी करेगा। भारत सरकार निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कृषि के क्षेत्र से संबंधित अनेक सुधार और पहल भी की गई है। इन रिफॉर्म्स के अंतर्गत एक देश एक बाजार तथा फार्म गेट अधोसंरचना के माध्यम से आमूलचूल बदलाव आएगा और किसानों की आय बढ़ेगी। तो नए कृषि कानून से किसानों के हित में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। कतिपय लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जागरूक किसान भाई उनकी ये चालें बखूबी समझते हैं। इन नए कानूनों से न तो एमएसपी प्रभावित होगी, न ही मंडियां बंद होंगी, ये दोनों चलती रहेंगी और क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो करार होगा वह किसानों की फसल के लिए ही होगा। जमीन किसानों की अपनी ही रहेगी। साथ ही अब किसान अपनी उपज मंडी परिसर के बाहर भी किसी को भी कहीं भी कभी भी उचित दाम पर बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक पैकेज में सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एक माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज का तकनीकी उन्नयन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री औपचारिकरण माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम शुरू की है। यह योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मदद करेगी और 5 साल में ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और कुटीर उद्योगों को समर्थन करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आजीविका के साधन और तेजी के साथ बढ़ेंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारतीय खाद्यान्न व किराना बाजार विश्व का छठा सबसे बड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के खाद्य बाजार का 32% होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे युवा साथी उनके उपभोग के जरिए इसे एक और बड़ा बाजार बना रहे हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से छोटे मध्यम उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार पैदा कर रहा है, क्योंकि यह उद्योग और कृषि के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रदान करता है और भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के खाद्य उत्पादन में सरप्लस की ओर बढ़ने के साथ साथ प्रसंस्करण स्तर बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इस दिशा में हमारा मंत्रालय चैंपियन क्षेत्रों की पहल पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसने अपने निर्यात बाजारों को विकसित करने के लिए रेडी टू ईट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, साइट्रस, मैंगो, आलू को शॉर्टलिस्ट किया है। हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक ब्रांडिंग और बाजार विकास बोर्ड के सृजन की ओर देख रहे हैं। फसल कटाई के बाद अवसंरचना बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अम्ब्रेला स्कीम पीएम किसान संपदा योजना शुरू की है, जो फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक अवसंरचना के सृजन के उद्देश्य से एक व्यापक पैकेज था। पीएमकेएसवाई का एक प्रमुख घटक मेगा फूड पार्क योजना है, जिसका उद्देश्य एक हब
और स्पोक मॉडल के माध्यम से किसानों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के साथ एक साथ लाकर बाजार में कृषि उत्पादन को जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। देश में 37 स्वीकृत मेगा फूड पार्क हैं, जिनमें 20 प्रारंभ हो चुके हैं। मंत्रालय ने औपचारिक रूप से टमाटर, प्याज, आलू से लेकर नष्ट होने वाली फल सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार करने की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत उत्पादन समूहों से लेकर उपभोग केंद्रों तक पात्र फसलों के परिवहन के लिए 6 महीने तक और 3 महीने के लिए भंडारण को भाड़े पर लेने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करने का भी निर्णय किया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक और बड़ी पहल है। राज्यों को अपनी स्वतंत्र खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों में खाद्य प्रसंस्करण नीति सामान्य औद्योगिक नीति का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने पहले ही अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा कर दी है और हम सभी राज्यों को अपने साथ लेने का प्रस्ताव राज्यों के सामने रखते हैं। मैं इस अवसर पर CII को इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि के क्षेत्र में CII की जो दृष्टि है और जो प्रयास है, वो निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा खेती के क्षेत्र को अग्रणी भूमिका में लाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभूतपूर्व योगदान देंगे। मैं आप सबको इस मौके पर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मिनिस्टर। पहली चीज जी, मैं एक वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा, और पहले बहुत ही धन्यवाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ताकि उन्होंने बहुत टाइम निकाला हमारे साथ रहने के लिए, पर उनका ज्ञान जो उन्होंने अभी इस स्पीच में दी, हम बिल्कुल सोचते हैं कि हम CI की तरफ से आगे ले जाएंगे और लेना चाहते हैं। किसानों हमारी देश की बिल्कुल कोर में है, और जैसे पिछले स्पीकर ने भी कहा था कि अगर हमें देश के माथे में बढ़ना होगा तो हमारे किसानों को बिल्कुल ही बढ़ना होगा। और जैसे श्री कोटक ने भी कहा था, अगर हम 4 दिशा में देखें, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन और प्राइसिंग पे, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल पहुंच पाएंगे। माननीय मंत्री जी महोदय, मैं फिर से दोहराता हूं कि CI कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और देश में कृषि की तरफ परिवर्तन की दिशा में पूर्ण समर्थन देगा। मैं ये अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता हूं कि हमारे पार्टनर्स मिनिस्ट्री को मैं बधाई और कि हम रिकॉग्नाइज करें। The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, the Ministry of Food Processing Industries, and the Ministry of Jal Shakti of the Government of India. मैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं जो हमारे पार्टनर्स हैं इस CI Agro Food Tech 2020 में, the states of हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और हमारे एग्जिबिटर्स और स्पॉन्सर्स को भी मैं रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, लेडीज एंड जेंटलमैन। विद दैट I'd like to call this session to a close. लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें DD किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है।
आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच